Good morning, students. Let us begin with Elements of Accounts, chapter number 7, Journal Proper. The journal proper is also a type of subsidiary book. Journal proper is kept in order to record those transactions which cannot be recorded in purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, cash book, petty cash book, bills receivable book, or bills payable book. These all are the books of subsidiary books. Okay. For example, furniture sold to Parthiv for rupees 5,000. This transaction is of credit sale of furniture, which is not recorded in any of the subsidiary book, and hence such business transactions are recorded in journal proper, which is a part of subsidiary books. Journal proper is a book of original entry in which miscellaneous credit transactions which do not fit in any other books are recorded. It is also called miscellaneous journal. The form and procedure for maintaining this journal is the same that of simple journal. The subsidiary book in which the transactions which are not recorded in any other subsidiary book are recorded is known as journal proper. Journal proper is mainly used for original records of a transaction which, due to their importance or rareness of occurrence, do not find a place in any of the subsidiary books of accounting. It is also known as a miscellaneous journal, and it looks much like any other journal. Journal proper is used for very limited number of transactions. The format of the journal proper is the same as the format prepared to record the journal entries. It has 5 columns with date, particulars, LF, ledger folio, debit amount and credit amount. Classification of transactions recorded in journal proper, or the types of entries that are entered in the journal proper, are as follows: opening entries, closing entries, rectification entries, transfer entries, adjustment entries and miscellaneous entries. Now let us see this classification of entries in brief. The journal proper is used to record following transactions. First is opening entries. Opening entries are the entries which are made at the starting of the financial year. Closing entries means at the close of the accounting period, balances from the various accounts are transferred in order to balance the books of accounts. Thus, this process of transferring balance of the trading and P&L account at the end of the year is called closing. The books and entries passed at that time are called as closing entries. Third is transfer entries. Transfer entries are the entries which are passed in order to transfer one account to another account. Fourth is adjustment entries. Adjustment entries are passed at the end of an accounting period in order to modify the accounts. Then rectification entries. Rectification entries are passed to rectify the error detected in the books through an entry in journal proper. Then entries for rare transactions. Journal proper is used for rare transactions. And the last is entries for which there is no special journal, where when the transactions cannot be recorded in the above subjournals, then the same are entered in the journal proper. Now let us start with practical. First is opening entries. When a person starts his business, he brings in personal assets into the business, which is recorded in the journal proper. As the name suggests, opening entries are recorded at the beginning of a financial period. The balances mentioned in the balance sheet of the previous year are brought forward by recording the liabilities, capital and assets from the previous year. Now
we shall see the example for opening entries. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जैसे जनरल एंट्रीज करते थे वैसे ही ये सिंपल है, सेम फॉर्मेट है और उसी तरीके से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे बट जनरल प्रॉपर में। और ये ध्यान रखना है कि ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस जो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं सब्सिडरी बुक्स में या सब्सिडरी बुक्स के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि परचेज से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो, कैश से रिलेटेड हो, पेटी कैश से रिलेटेड हो, इस टाइप के बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इस टाइप के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। बट इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस लेफ्ट हैं या अनरिकॉर्डेड हैं वो आएंगे जनरल प्रॉपर में। एंड वन मोर थिंग, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। उसके लिए हमें पहले तो देखना है कि 3 टाइप के अकाउंट्स कौन से हैं। वो आपका पूरा बेस ही इस पे है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप के अकाउंट्स कौन से हैं। तो पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट एंड तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इन 3 अकाउंट में भी रूल्स हैं और वो गोल्डन रूल्स हैं। अगर आपको अकाउंट्स में फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। पहला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, अभी हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैश अकाउंट 10,000, स्टॉक 20,000, डेप्टर्स 80,000, बिल्डिंग 1,60,000, क्रेडिटर्स 10,000, बिल्स पेएबल 40,000। तो पहले तो हम ऐसे हेडिंग डाल देंगे, जनरल प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। ओके, अब एंट्री पास करेंगे। सिंपल है, बहुत ही ईजी है। पहला है कैश अकाउंट डेबिट टू 10,000 मीन्स कैश आ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। स्टॉक हमारी असेट है और स्टॉक पड़ी है, या ऐसा बोल सकते हैं असेट इंक्रीज तभी डेबिट हो रहा है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000। फिर डेप्टर्स डेबिट 80,000। डेप्टर्स हमारी असेट है, मतलब हमने जिनको पैसा दिया है वो हमें फ्यूचर में कभी ना कभी देंगे, तो वो हमारे डेप्टर्स हैं। डेप्टर्स अकाउंट डेबिट मतलब असेट इंक्रीज 80,000। बिल्डिंग्स असेट, अगेन असेट इंक्रीज डेबिट तो 1,60,000। टू क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, हमें उनको पैसा चुकाना है तो वो हमारी लाइबिलिटी है। टू क्रेडिटर्स 10,000, टू बिल्स पेएबल 40,000 एंड टू कैपिटल। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो जाएगा किस में, कैपिटल में, क्योंकि ओपनिंग एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो लास्ट हमारा जो खुलेगा अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस फिगर आएगा 2,20,000। और नरेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो बीइंग ओपनिंग बैलेंसेज, या तो बीइंग ओपनिंग बैलेंसेज और कैपिटल ब्रॉट एज ऑन स्टार्टिंग द बिजनेस। फिर है सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ X अकाउंट टू द क्रेडिट ऑफ Y अकाउंट। क्रेडिट मतलब मिल रहा है, तो X अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि क्रेडिट ऑफ X ट्रांसफर करना है। तो X कौन है, रिसीवर है, और Y कौन है, गिवर है। X अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट ₹2,000। फिर है ₹400 रिपेयर्स टू फर्नीचर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बाय मिस्टेक। ये वैसे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री है बट इसमें आ गई है तो हम देख लेते हैं, हमें वैसे तो आगे पढ़ना ही है। इसमें आएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड नरेशन मस्ट है बीइंग रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने उसे रेक्टिफाई कर लिया है। रिपेयर्स हमारा एक्सपेंस है, ओके, एंड फर्नीचर इज अवर असेट। फिर आता है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स। सो एंट्री होगी, यहाँ पे इसका अमाउंट शायद नहीं दिया हुआ है तो हम ले सकते हैं बिल्डिंग्स के लिए, सॉरी हाँ ऊपर दिया हुआ है। फर्स्ट जो एंट्री है ना हमारी उसमें दिया हुआ है बिल्डिंग्स अकाउंट ₹1,60,000, तो उसी का हम 10% फाइंड आउट कर लेंगे।
शॉर्ट में आप बोलो तो 1 0 कम पीछे से, ओके। फिर डेप्रिसिएशन एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग्स। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है एंड बिल्डिंग हमारी असेट है जो वो डिक्रीज हो रही है। लास्ट इज रेंट अनपेड 2400। हमने रेंट पे नहीं किया है तो हमें कभी ना कभी तो फ्यूचर में पे करना है, तो वो क्या है हमारी लायबिलिटी। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स हमें पे करना है ₹2400 एंड बीइंग रेंट अनपेड। Now next is transactions not included in other subsidiary books. It records those transactions for which no separate subsidiary book has been provided. Credit purchase and sale of assets, bad debt, depreciation and goods withdrawn by the proprietor are some of the examples of transactions which are recorded in the general proper. When asset is purchased or sold for cash, it is recorded in the cash book. But if the asset is purchased or sold on credit and its profit or loss on sale recorded in the general proper. Some special transactions are not recorded in any subsidiary book, so they are recorded in general proper. For example, goods given as charity, goods given as sample, goods taken for personal use, dishonor of a bill, bad debts, endorsement of bills receivable, loss of goods due to fire, accident, theft, etc. and depreciation. अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सोल्ड एन ओल्ड मशीन हुज बुक वैल्यू इज ₹10,000 टू मौलिक फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट। हमने मौलिक को एक मशीन सेल की है जिसकी बुक वैल्यू है 10,000 और हमने उसको 8,000 में सेटल कर लिया है। तो मशीन कितने में गई मौलिक को? 8,000। हमारा लॉस हुआ 2,000 का और मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10,000। सो एंट्री होगा मौलिक अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट 2,000 टू मशीनरी अकाउंट 10,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीन ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट। Next is, we accepted a bill of 5,000 drawn by Ketan against his debt of 7,000, which we accepted and returned to him. So यहाँ पे केतन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है और बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। सो एंट्री होगी केतन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5,000, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया और रिटर्न किया है 5,000 से। और नरेशन आएगा बीइंग बिल ऑफ ₹5,000 ड्रॉन बाय केतन एक्सेप्टेड बाय अस। नेक्स्ट इज अ बिल ऑफ ₹2,000 एंडोस्ड इन फेवर ऑफ पंकज अगेंस्ट डेप्ट ऑफ ₹2,050। पंकज को हमें देना है, पंकज रिसीवर है, कितने का? 2,050 का। और बिल्स रिसीवेबल नाम की असेट हमारी डिक्रीज हो रही है टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हमारा इनकम है ₹50। नरेशन आएगा बीइंग बिल ऑफ ₹2,000 एंडोर्स टू पंकज। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट्स ट्रांसफर। Inter-account transfer can be confusing when importing bank statements. The confusion typically arises because an inter-account transfer is really two separate transactions: a withdrawal from the source account, that is a payment, a deposit to the destination account, that is a receipt. Sometimes, due to some reasons, the amount is to be transferred from one account to another account either partially or fully. Such transfer is recorded in the journal proper. In the same way, when an account is closed at the end of the year and transferred to another account, the transfer entry is passed in journal proper.
Let us understand it through the following illustration. For example, rupees 5000 payable to Akash is accepted by Dharti to pay. हमें आकाश को पे करना है 5000 और वो एक्सेप्ट कर रही है धरती के वो पे करेगी, तो इसका जनरल प्रॉपर ये बनेगा आकाश अकाउंट डेबिट टू धरती अकाउंट रुपीज़ 5000. नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग पेबल टू आकाश इज एक्सेप्टेड बाय धरती टू पे. फिर है एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर. हमें ड्राइंग्स का अकाउंट क्लोज करना है, तो ड्राइंग्स का बैलेंस किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में. तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट. सो यहाँ पे कैपिटल नाम की लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है और ड्राइंग्स नाम की एसेट डिक्रीज़ हो रही है, और नरेशन आएगा बीइंग बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. Now, closing entries. Closing entries means entries given at the end of the accounting year to close various accounts. Almost the opposite of opening entries. They are recorded at the end of the financial period. Closing entries are related to nominal accounts. These accounts are closed by transferring their balances to trading and P&L account. A record is not included in a ledger without a general entry. So closing entries are recorded with the help of general proper and then recorded in the ledger. Temporary accounts includes revenue, income and gains account, expense and loss accounts, dividend, drawings or withdrawals accounts, income summary account. Let us see, for example, at the end of the year the balance of purchase account is 75,000. Balance of sales account is rupees 85,000. Carriage inward account is rupees 2,000. Balance of salary account is rupees 20,000 and the balance of dividend account is rupees 3,000. Write closing entries. So the following general entries will be passed in the journal proper. हमें डेट वाइज जाना है एंड ये एक तो क्लोजिंग एंट्रीज हैं तो क्लोजिंग डेट्स ही आएंगी मोस्ट ऑफ, मीन्स एंड ऑफ द मंथ. सो फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट. हमें क्लोज करना है बीइंग परचेज अकाउंट क्लोज्ड बाय 75,000 एंड ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्लोज करना है हमें 75,000 से. फिर नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बीइंग सेल्स अकाउंट ऑफ 85,000 क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट. और इसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज क्यों किया, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस या गेंस से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस P&L अकाउंट में आते हैं एंड असेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट में आते हैं, इसलिए हमने इसको ट्रेडिंग से क्लोज किया. फिर नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड. एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट टू कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड का मतलब है जब हम कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगवाते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करना होता है, या तो उसे फ्रेट चार्जेस भी बोलते हैं. तो उस खर्चे को भी हम गुड्स से रिलेटेड ही मानेंगे कि अगर हमने परचेज किए गुड्स 10,000 के और उसमें ट्रांसपोर्टेशन या तो आप बोल दीजिए डिलीवरी चार्ज अगर है 500, तो वो एक काइंड ऑफ या तो पार्ट ऑफ एक्सपेंस ही है, वो भी रिलेटेड टू गुड्स के ही पार्ट में वो इंक्लूड हो जाता है खर्चा, तो उसे हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड. सो एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड. नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट रुपीज़ 20,000. सैलरी अगेन हमारा एक्सपेंस है, हमें किसी को तो पे करना है, या तो सैलरी मिलती है या तो पे करना होता है, तो दोनों ही पार्ट ऑफ P&L हुए. तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, इट इज़ एन एक्सपेंस. देन डिविडेंड रिसीव्ड है मीन्स हमें मिल रहा है क्या, डिविडेंड, और वो क्या है हमारी इनकम. तो एंट्री होगी डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L से इसको क्लोज करेंगे. नरेशन आएगा बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड
rupees 3000 closed and transferred to P&L account. नीचे एक नोट दिया हुआ है, A detailed explanation of such closing entries is given in the chapter of final accounts. जब आप ये फाइनल अकाउंट्स करेंगे तभी आपको और डिटेल में पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या होते हैं. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज. Adjusting general entries are accounting entries made to a company's journal of accounts at the end of a financial period. The process allocates income and expense to the actual period in which the income or expense occurred. Accrued expense that are paid later to the period in which the expense is incurred. The main purpose of adjusting entries is to update the accounts to conform with the accrual concept. If adjusting entries are not prepared, some income, expense, asset and liability accounts may not reflect their true values when reported in the financial statements. For this reason, adjusting entries are necessary. Accrued income या expenses ऐसे हैं जिनका हमने पेमेंट या सर्विस दे दी है लेकिन फ्यूचर में हमें उसके बेनिफिट्स या इंटरेस्ट मिलना बाकी हो. Now let us see some examples. Depreciation expense to accumulated depreciation 5000. Depreciation एक तो हमारा expense है but ultimately it becomes a loss. To record annual depreciation expense मतलब एक कई सालों का खर्चा है जो जुड़ जाता है और फिर वहाँ से डिडक्ट होता है. नेक्स्ट है सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरी पेएबल. सैलरी एक तो हमारा खर्चा है तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा और पे करनी है हमें तो वो लाइबिलिटी है. टू रिकॉर्ड अक्रूड सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज को देना बाकी है. नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट. टू रिकॉर्ड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नॉट पेएबल. अगेन दिस इज लाइक इंटरेस्ट हमें पे करना है बैंक के एम्प्लॉयज़ को या अकाउंट होल्डर्स को, तो वो एक तो हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट पेएबल इसलिए है क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है. नेक्स्ट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू टू रेवेन्यू अकाउंट. जो हमें मिला नहीं है अभी तक तो हमारी एक तो असेट इंक्रीज हो रही है टू रेवेन्यू अकाउंट, वहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे. Our last topic is rectification entries. Rectification means finding the error in the whole accounting process and correcting it by passing the rectified entry, which will help you to make the corrections in the entry which are passed wrongly. Many transactions take place in the business during an accounting year and are recorded in the books of accounts. There are chances of error being committed while making such records. The rectification of errors can be done after trial balance but before preparation of final accounts. Whenever an error occurs, it should be rectified through proper rectification. Otherwise, the books of accounts cannot exhibit the true and correct view of the state of affairs of a business and its financial results. So, it is very important that we identify and rectify all material errors in the books of accounts. Now let us see an example. Rectify the following errors. The sales book of December was added short by 500. Sales book में 500 रुपीस कम रिकॉर्ड किए हैं तो हमें क्या एंट्री पास करनी है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 बीइंग सेल्स बुक वाज एडेड शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड मतलब अब उसमें ऐड हो गए. नेक्स्ट है अ पीरियोडिकल टोटल ऑफ परचेज बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 5000 मतलब कम है. परचेज अकाउंट डेबिट होता है टू सस्पेंस अकाउंट 5000 बीइंग परचेज बुक वाज अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड. कम अमाउंट से उसको रिकॉर्ड किया था अब रेक्टिफाइड हो गया है.
Next is the total of purchase return book has been undercast by 1500. परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा. एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. अभी जैसे मैंने बोला परचेज है तो डेबिट, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट. एंड लिखेंगे हम बीइंग परचेज रिटर्न बुक वॉज कास्ट शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड. लास्ट इज द सेल्स रिटर्न बुक इज एडेड ₹200 शॉर्ट. उसमें रिकॉर्ड करना बाकी है ₹200. तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहा है टू सस्पेंस अकाउंट. बीइंग सेल्स रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड. So, hope you all have understood. I am giving you one question. Please try to solve it and let us discuss it now. Dhrumil Kamani starts business with following assets and liabilities on date 1/1/2015. Write opening general proper. It means कि यहाँ पे ओपनिंग एंट्रीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें कैश बैलेंस ₹18,000, बैंक बैलेंस ₹12,000, फर्नीचर ₹15,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ₹20,000, पर्सनल डेप्टर्स ₹5,000 एंड 12% लोन फ्रॉम मायाबेन ₹10,000. नीचे नोट भी दिया हुआ है रिकॉर्ड कैश एंड बैंक बैलेंस इन द कैश बुक. इट इज़ क्लियर कि हमें कैश 18,000 और बैंक बैलेंस 12,000 को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि हम उसे फर्दर कैश बुक में कर चुके हैं. सो रिमेनिंग अकाउंट्स का आपको जनरल प्रॉपर क्रिएट करना है. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट. थैंक यू.